Welcome guys to my YouTube channel. My name is Irfan Haider and you are watching my YouTube channel Irfan Haider Gilani. तो प्रीवियसली हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये 4 एडजस्टिंग एंट्रीज हमने देख ली थी। इन चारों की एडजस्टमेंट हमने देख ली थी कि किस तरह से इनको एडजस्ट किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में। आगे हम नेक्स्ट मज़ीद इस तरह की एडजस्टमेंट देखेंगे। टोटल हमने देखा था कि आई थिंक 9 एडजस्टमेंट होती हैं, जिसमें से हमने 4 कर ली हैं। बाकी रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स टुडे हम इसको अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। So the today's first adjustment is that interest on capital and owner's salary. Okay, how can we treat this type of adjustment and what does it means actually, interest on capital or owner's salary? As we know, owner of the business totally belongs to the owner. Why he take the salary from the business? Let's see. A business is regarded as an economic unit distinct from the owner, and the amount invested by the owner is regarded as the liability of the business. As we earlier know, the separate legal entity concept of accounting. Separate legal entity concept of accounting tells us that business is separate entity from its owner. Accountant doing accounting for business, not for the owners. Okay, accountant record only the financial transaction of the business, not financial transaction of the owner. Owner is separate from its business. तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। ऑनर कहता है कि मैं बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊं, जबकि मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं इसी पैसे को अगर बैंक में इन्वेस्ट करूं या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दूं तो वो मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट देगा। तो व्हाई डू आई इन्वेस्ट दिस इन कैपिटल ऑन बिजनेस? तो इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है किसको, ऑनर को। अगर वो इंटरेस्ट कम भी हो तो ऑनर को सेफ एंड सिक्योरिटी का पता होता है कि जी मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, मेरे ही बिजनेस में लग रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट अगर कम मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम। ओके, व्हेन द बिजनेस बोरो, ओके, यहां से आज हम इसको देखते हैं। व्हेन बिजनेस बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल, it pay interest on the borrowed money and this interest is considered as an expense of the business and is charged to profit and loss account. Similarly, if business borrowed amount from the bank, then business should pay that interest on that borrowed money. तो इसी चीज़ को देखते हुए ऑनर भी ये डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरी पेमेंट के ऊपर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। In the same way, the profit of the business is only justified if the interest on capital is also regarded as an expense of the business and is charged to the profit and loss along with other expenses. हमने जो दो चीज़ें देखी थी एडजस्टमेंट के अंदर कि जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज आपने पास करनी है, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि हम ट्रू एंड एक्यूरेट पोजीशन बता रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ और एक्चुअली इसकी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन क्या है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, तब जाके एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की सामने आएगी। Moreover, interest on capital is regarded as an expense, okay, of the business because if the owner would invest elsewhere an amount equal to the amount of capital invested in the business, he would have obviously earned some income, that is investment on government securities or the certificates. अगर दूसरे बैंक में ना भी वो इन्वेस्ट करे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाकर इन्वेस्ट कर देगा, वहाँ से उसको फिक्स अमाउंट आती रहेगी प्रॉफिट की। तो वाई शुड ही इन्वेस्ट हिज अमाउंट इन योर बिजनेस? Obviously for the sake of any return. When business gives some return to the owner, then owner will decide to invest this amount in your business. So
This is known as normal income or normal profit. The interest on capital at normal rate is charged to profit and loss account in order to see whether the business is earning extra profit over and above the normal profit. Similarly, owner's salary is also regarded as an expense on the business and is charged to profit and loss account. ऑनर समटाइम ये भी डिमांड करते हैं कि मुझे सैलरी दी जाए, मैं आपके बिजनेस में एक्टिवली तौर पर परफॉर्मिंग कर रहा हूँ। जब वो एज अ डायरेक्टर या कुछ और परफॉर्म करेंगे तो वो अपनी सैलरी को भी बिजनेस में ट्रीट करेंगे एज अ एक्सपेंस। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो टैक्स के स्टूडेंट हैं, जो टैक्स कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। टैक्स प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट, so don't mix up these two profits, because when tax authority calculate your income for the tax purpose, it deducts some expenses, it add back some expenses and deduct some incomes which you record in your profit and loss account. So always remember, tax profit and accounting profit both are different things. At the end of the year, when interest on the capital is recorded, the following entry will be passed, that is interest on capital account. Simple interest account is the expense, so we will debit it. And what will be credited, that is the capital account, because ऑनर ही तो है जो इस इंटरेस्ट को रिसीव करेगा, और ऑनर जब बाय हैंड रिसीव करेगा तो फिर करेगा, लेकिन उससे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होंगी तो तब हम उसके कैपिटल के तौर पे उसको ट्रीट करेंगे कि जब भी ऑनर को पेमेंट की जाए या ऑनर जब भी अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा तो वो कैपिटल का ही नाम दिया जाएगा उसको। तो ये भी पैसा असल में बिजनेस में लग गया, किसके तरफ से, ऑनर की तरफ से। When owner's salary is taken into the account, the following entry will be passed: owner's salary account to कैपिटल अकाउंट। जब हम ऑनर की सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको भी एज अ कैपिटल ही ट्रीट करेंगे जब तक वो निकलवा नहीं लेगा। जब वो निकलवा लेगा तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही होती है तो एट दैट टाइम जो है ना वो उसको पेमेंट नहीं की जा रही होती, पेमेंट फ्यूचर में बाद में की जाएगी, बट फॉर द बीइंग ऑफ द टाइम हमने उस टाइम रिकॉर्ड करना होता है कि ये असल में कैपिटल बिजनेस में आ गया ऑनर की तरफ से। नेक्स्ट वन आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बिजनेस के भी कुछ रूल हैं। जब ऑनर की तरफ से आने वाले पैसे पर उसको इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस, तो बिजनेस में जो ड्राइंग करेगा ऑनर, जिससे जो चीज़ें निकलवाएगा, जो पैसा निकलवाएगा, उसके ऊपर उसे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक वो पैसा वापस नहीं वो लगा देता बिजनेस में। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। When interest is allowed capital and is regarded as an expense of the business, then it is very much logical that the business should also charge the owner with the interest on his drawings. This interest on drawing is the revenue of the business. जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस था, इसी तरह ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो रेवेन्यू होगा बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस ने एक इनकम जनरेट कर ली, एक इनकम का सोर्स बना लिया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एंड क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें पता है कि क्रेडिट साइड पर तमाम प्रॉफिट लिखे जाते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो फॉलोइंग एंट्री ड्राइंग अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये हमारी इनकम हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट वाली चीज़ इनकम को शो कर रही है और डेबिट वाली चीज़ हमारी शो कर रही है कि हमारी जो वो ड्राइंग्स थी उसमें से हमने इस इनकम को चार्ज किया है। ठीक है, असल में पैसा किसका कम हुआ, असल में बिजनेस ने तो एक इनकम जनरेट कर ली, लेकिन उसका सोर्स क्या बना, सोर्स ओनर खुद ही बना। ओनर का ही पैसा कम होके वो असल में बिजनेस की इनकम बन गया। मैं आपको पहले बताया दो चीज़ें अलग हैं, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस ने कहा कि भाई आप अगर ड्राइंग करोगे तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और इंटरेस्ट कौन देगा, वो आप ही दोगे इंटरेस्ट। तो ड्राइंग के ऊपर उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया कि आपकी ड्राइंग बढ़ गई है,
इंटरेस्ट तो हमने कमा लिया, लेकिन साथ ही साथ आपकी ड्राइंग भी बढ़ गई है, जिससे आपका असल में कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग जो होती हैं वो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल में से लेस होती हैं। कैपिटल इतने से कम हो गया, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का पैसा लगाया बिजनेस में ऑनर ने, साल के दरमियान में 50,000 निकाल लिया, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे उसका कैपिटल कम हो गया, वो तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। हम उसको एज अ ड्राइंग ट्रीट करेंगे कि जी ड्राइंग 50,000 का उसने ऑनर ने पैसे निकलवा लिए, विड्रॉल कर लिया, तो साल के एंड पे 1 लाख का जो कैपिटल था उसमें से हम ड्राइंग माइनस कर देंगे, बकिया जो बचेगा वो उसका कैपिटल आ जाएगा। तो ये एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है कि जी ड्राइंग्स के तौर पे आपने उसके कैपिटल को कम करना है। तो जब बिज़नेस की इनकम इंक्रीज़ हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो असल में ड्राइंग्स बढ़ गई, मतलब उसने पैसा उस बिज़नेस ऑनर का ही पैसा निकला जो कि इनकम बन के बिज़नेस में आ गया। आई होप सो कि मैंने आपको बड़ी डेप्थ में जाके इसको क्लियर किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। नंबर 8, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये क्या कहता है, डिस्काउंट में बी अलाउड टू डेटर्स। दो चीज़ें प्रोविजन है, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है और एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सेम ट्रीटमेंट है दोनों का, दोनों मतलब सेम ही एसेट में से लेस होनी होती हैं, बस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो पहले लेस होती है और प्रोविजन जो डिस्काउंट है वो उसके बाद लेस की जाती है। ठीक हो गया। डिस्काउंट में भी अलाउड टू डेटर्स, डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, ठीक है, इफ़ दे विल पे दियर डेट बिफोर द ड्यू डेट। हमें पता है, हमने एक पॉलिसी बनाई है बिजनेस में कि अगर हमारे जो डेटर्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको इतने % डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 30 दिन के बाद वो पेमेंट करेंगे तो उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला जाएगा, वो कोई भी डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकते हैं। तो इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्रोविज़न बना लेते हैं कि हो सकता है हमारे डेटर्स जो इतना डिस्काउंट अवेल कर लें, हमें जल्दी पेमेंट कर दें, तो हमें वो डिस्काउंट अगर हमने पहले से प्रोविज़न बनाया होगा तो हम उस प्रोविज़न में से उसको यूज़ कर सकेंगे। For discount to be allowed to the debtor, a provision should be created in the same manner as is done in the case of doubtful debts। जैसे doubtful debts में होता है कि आप एक % ले लेते हैं कि 2% हमें पता है कि हमारे डेटर जो है ना वो डाउटफुल हैं, वो पेमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या कुछ और मसला बन जाएगा, तो हमने 2% उसमें से डेटर में से लेके निकाल के माइनस कर दिया, प्रोविजन एक्सपेंस शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस शो कर दिया और बैलेंस शीट में उस एसेट में से उसको माइनस कर दिया, और नेट हमारे आ गए फिर जी अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स के इतने हमारे डेटर्स ठीक हैं, अब ये गुड डेटर्स हैं। सच डिस्काउंट इज आल्सो पॉसिबल लॉस टू द बिजनेस, दिस इज नोन एज द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन द डेटर्स। Here same procedure is followed and similarly entries are passed as the case of the provision for doubtful debts. Okay, in both the cases provision is created at certain percentage, ठीक हो गया, of the amount of debtors. The only difference is that, अब यहाँ पे वो difference आपको बता रहा है, here is the difference that what is the difference between provision on bad debts, provision on discount. So be careful, is that provision for discount is created on good debts. Okay, first of all you have good debts. Good debts, how can we calculate the good debts? When we deduct all bad debts, all provision bad debts, all additional bad debts from the debtors, then we will get the good debts. And now it is the time to create the provision for discount. So the total debtors had debt in adjustment if any, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सारे माइनस करने के बाद आपके पास जो डेट्स आएंगे वो गुड डेट्स आपके होंगे, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। देखें जी, डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के ऊपर तो हम डिस्काउंट की उम्मीद रख ही नहीं सकते ना, जो हो ही बैड डेट्स गए, जो हो ही बैड डेट्स जाएंगे फ्यूचर में, उसको हम डिस्काउंट किस चीज़ का दें, वो तो पूरे पैसे नहीं हमें देने आएंगे, तो डिस्काउंट किस चीज़ का हम दें? डिस्काउंट तो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो हमें हो सकता है फ्यूचर में टाइमली पेमेंट कर दें, तो जो टाइमली पेमेंट करने वाले होंगे उसके लिए आपको एडवांस में प्रोविजन बनानी पड़ेगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सेम लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब जिन लोगों ने आपको चीज़ें उधार दी हैं
वो आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने उनको पेमेंट करनी है फ्यूचर में। इसी तरह आपने भी कोई प्लान किया होगा कि बिजनेस ने भी ये प्लान बनाया होगा कि हमने भी डिस्काउंट अवेल करना है फ्यूचर में। अगर हमें जल्दी पेमेंट, हमें लग रहा है कि हम इतनी पेमेंट करेंगे टाइमली और इतना एडवांस, इतना बेनिफिट जो है ना किसका, डिस्काउंट का हम रिसीव कर सकेंगे, तो उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन आपने प्रोविजन बना ली। तो आप साल में जब भी आप डिस्काउंट अवेल करेंगे उसी प्रोविजन को आप अकाउंट को यूज़ करके एडजस्ट करेंगे। वी अलाउ डिस्काउंट टू अवर डेटर्स इन द सेम वे वी मे आल्सो रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स। Such a discount is an expected revenue. Okay, so provision is created at the year end for the estimated amount for discount receivable from the creditors. This is known as the provision or reserve for discount on creditors. This provision or reserve is calculated as a certain percentage of the total debtors, total creditors. तो सर्टेन परसेंटेज एस्टिमेटेड होती है कि जी 5% हो सकता है हम पेमेंट कर दें अपने डेटर्स में, हमारे 1 लाख के हैं तो हम 5% को पेमेंट कर देंगे। तो वो 5% आप डिस्काउंट ले लेते हैं कि जी इतना डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, वो आप उसमें से माइनस कर देते हैं कि हमारे क्रेडिटर असल में इतने हैं, इसमें से हमें डिस्काउंट जो मिल जाएगा वो हमारी इसमें से इतनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। सो these are the complete adjusting entries for the financial statements. उम्मीद है कि हमने इसको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े डीपली हमने इन चीज़ों को देखा और आपको क्लियर हो चुका होगा। 2 वीडियोज़ हमने इसमें बनाई हैं। एक मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने पहले 4 को डिस्कस किया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने 4 या 5 है इनको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि और उनको भी कोई मसला है तो वो इसको वीडियो को देखकर अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।